on the latest development in the Mahua payoff scam, BJP MP Nishikant Dubey has said that he has filed a complaint against Mahua Moitra with Lokpal. This comes after BJP MP Nishikant Dubey hit out at the TMC leader in a scathing attack, saying that Mahua Moitra compromised national security. Furthermore, the National Informatics Centre has stepped in and Parliament data security angle is also under investigation, with Nishikant Dubey himself saying that NIC has given all possible information to the investigating agency. In fact, this entire scam sort of blew out of proportion after Darshan Hiranandani filed an affidavit, a notarized affidavit that was given to the ethics panel of the Parliament, following which the controversy has now snowballed. We have a lot of political reactions coming in on this. Let's listen in. परत दर परत सच सामने आ रहा है। किस तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान किया गया, एक षड्यंत्र के तहत, एक धोखाधड़ी के तहत। और ये धोखाधड़ी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, देश के साथ हुई है। 140 करोड़ भारत के नागरिकों के सबसे बड़े मंदिर के खिलाफ की गई, और चंद गिफ्ट्स और लालच के कारण आपने संसद सदस्य जो कि 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि है, उसका आईडी जो पासवर्ड आपने है, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी को बदनाम करने के लिए एक इंटरनेशनल षड्यंत्र के तहत किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये धोखाधड़ी भी है, जालसाजी भी है, और लोकतंत्र का अपमान भी है, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। ठीक है, संगीन कॉम्प्लेन आया उनके खिलाफ, सीरियस कॉम्प्लेन है। तो जो संसदीय परंपरा है, रीति नीति, उसको ताक में रख के जो राजनीति करते हैं, केवल ढंग करने के लिए, नाटक करने के लिए पार्लियामेंट को यूज करते हैं। कॉम्प्लेन आया है, उसका पूरा छानबीन होनी चाहिए। बहुत संगीन कॉम्प्लेन है ये। बंगाल में तो बीजेपी का एक एजेंडा, उनका पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ऐसा हरकत करता है, हर दिन गाली खाना पड़ता है, स्पीकर से डांट पड़ता है, सस्पेंड होना पड़ता है, और टीएमसी के सारे एमपी का ही हो गया। इसलिए राजनीति में लोग इसलिए चुन के भेजा है क्या? संसदीय परंपरा को ही तोड़ देंगे आप? यहाँ की कोई एथिक्स नहीं मानते, वहां नहीं मानते, कौन सा राजनीति है? So while the TMC is silent and have not gone on record as far as this entire scam is concerned, other Indie Alliance partners are coming out in support of Mahua Moitra. Let's listen in to what they said. Are they probed one? And charges against Adani have been proved. And yet Mr. Modi is not replying. And coal scandal where over 12,000 crore rupees has been swindled. What about that? One. And second, that I have read it, what Mahua Moitra has to say, and what Darshan Hiranandani said. He said that he met in 2018, 17 perhaps, and kept on meeting. Then why did he bribe for what? First of all, he should be arrested, because giving a bribe is also an offense. Why he? And second, that why he was giving? And as far so long as he kept on supplying information about Adani to Mahua Moitra, that worked well as per his statement. But when the government came heavily on him, he is retracting. I think that's the reason. इस संसद की मुखर सांसदों में से एक है। दूसरे सांसद महोदय ने उन पर कुछ आरोप लगाए। अब महुआ मित्रा जी ने भी पलट करके वार किया है। लोकसभा के हमारे माननीय स्पीकर ओम बिरला जी ने एक कमेटी बनाई है, जिसको हम इथिक्स कमेटी बोलते हैं, जो सांसदों के आचरण व्यवहार को लेकर के अपनी राय रखती है, राय बनाती है। सारा मामला इथिक्स कमेटी के सामने है, और उससे पूर्व उसके निर्णयों पर टिप्पणी करना ये उसकी मर्यादा के खिलाफ है। लिहाजा मैं
जो माननीय सदस्य हैं इसके इथिक्स कमेटी के, उनके विवेक पर और अध्यक्ष जी बनाई गई कमेटी के विवेक पर छोड़ता हूं कि वो क्या फैसला करते हैं। I do not have any idea. I cannot comment out of blue. But Parliament member has the right to raise questions. In earlier occasions also the question came that some member raised question by taking money. It is illegal. It is unparliamentary. If it is correct, Parliament inquire. It will be proved. But the hullabaloo is because the biggest looter of this country is being raised by her in the parliament. I am not a parliament here. Parliament has their rules, accordingly they will behave. But other things, that all the false degree of the person of the MP, Parliament is not asking him. Because he is BJP man. So these things, their partiality is doing, that will damage the image of the parliament if partiality is there. मैं इसको मानता हूं कि ये हमारे समकालीन राजनीति में एक ऐसा मसला है जिसमें कई परतें हैं। यही हीरानंदनी साहब 3 दिन पूर्व कह रहे थे कि उन पर लगाया आरोप। तब कौन आरोप लगा रहा था? बीजेपी के जिन सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर लगे ये आरोप निराधार है। वो निराधार से 48 घंटे के बाद आधार पाते हैं। वो आधार पाते हैं या उन्हें आधार दिया जाता है या उनसे आधार लिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। और मुझे सबसे आश्चर्य लग रहा है कि जो चीज़ें एथिक्स कमेटी के संदर्भ में वो मीडिया के समक्ष कैसे आ रही हैं, जाहिर तौर पर कि पूरे नियोजित तरीके से हो रहा। और आखिरी टिप्पणी तो मैं ज़रूर करूंगा कि ये समझ, बाकी एथिक्स कमेटी तय करे, लेकिन ये तय हो गया कि इस देश के जिस नामचीन उद्योगपति की चर्चा, उनकी पैठ बहुत है हर जगह। वो अपने पैठ का कब, कैसे, किस पर इस्तेमाल कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एथिक्स कमेटी को काम करने दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि इस उद्योगपति जिसको वरदहस्त हासिल है सत्ता शीर्ष का, हम देख रहे हैं ना, कोई सवाल उठाता है, छोड़िए पार्लियामेंट की, मीडिया में सवाल उठता है तो ब्लैकआउट हो जाता है, दिखता नहीं है। मतलब मैंने आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी उद्योगपति का ऐसा वर्चस्व नहीं देखा था।